جائے گا ہو رہا ہے لوڈنگ. السلام علیکم ویورز. آج میرے ساتھ موجود ہے عمر فاروق ہیلتھ والا. تو آج میرا جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں اے آئی اسکول میں کراچی میں. تو میرا آج ٹاسک تھا کہ مجھے انٹرویو کرنا ہے کسی بھی پرسنالٹی سے. تو آج میں نے سوچا کہ ان سے انٹرویو کرو, ان سے میں نے بارگیننگ کی. السلام علیکم عمر فاروق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بھائی جان, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں, کیا حال ہے, کیا طبیعت ہے؟ میں خیریت سے ہوں, آپ کی دعائیں ہیں بالکل. اور آپ سنائیں آج کے آپ نے کیوں جوائن کیا ہے یہ ریحان اسکول جو ہے, آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ مثلا آپ کون سا کورس کر رہے ہیں یا آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ جی بالکل, میں ریحان کالج کا اسٹوڈینٹ ہوں. اور صحیح ہے. جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے. اور میں نے 7 سال مختلف ہاسپٹل کے اندر ایز اے ڈسپینسر کام کیے. ماشاء اللہ. تو رائٹ نو ابھی میں نے جو اپنی جاب تھی ڈسپینسر کی وہ اسکپ کر کے میں ریحان کالج کراچی آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ریحان کالج, جیسے کہ سر ریحان اللہ والا نے بیان کیا, ان کی جی ایک ویڈیو ہے فیس بک کے اوپر کہ میں چاہتا ہوں میں ایک کالج بنا رہا ہوں جس کے لیے میں ایسے فیوچر کے لیڈر تیار کروں جو 4 سال بعد ریحان کالج سے نکل کے ٹھیک. ایک لیڈر ہوں گے اور پوری دنیا کو لیڈ کریں گے. اور انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے وہ بہتر کر سکیں گے اور اپنے معاشرے کے لیے مثبت کام کریں گے. اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں انشاءاللہ وہ دنیا کو لیڈ کریں گے, اپنے ملک پاکستان کو لیڈ کریں گے. تو اور زبردست. ان کے پاس پریکٹیکل اسکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز بھی ہوں گی, اور سافٹ اسکلز کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اسکلز بھی ہوں گی. جیسے کہ ریحان کالج جو ہے وہ اس کا ڈیوریشن 4 سال کا ہے, اونلی 4 ایئر. اور اس میں آپ کو پلمبنگ, الیکٹریشین جو کہ فزیکل کام ہے وہ آپ کو سمجھایا سکھایا جائے گا. میسن ورک ہو گیا, اس کے بعد کارپینٹر ہو گیا, اس طرح کے کام کروائے جائیں گے جو کہ آپ کی جو لائف زندگی ہے اس کے اندر آپ کے کام آئیں گے. اور ان فیوچر آپ جب آپ گھر کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی باہر سے بندہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو اپنا کام ہے, کچھ مسائل ہیں وہ گھر کے مسائل خود بھی سولو کر سکتے ہیں. آیا کہ کل اگر آپ ایک ادارے کو مینیج کر رہے ہیں تو آپ اس ادارے میں اگر کوئی فالٹ آتا ہے, کوئی الیکٹریسٹی کا فالٹ آتا ہے, کوئی پانی کا فالٹ آتا ہے, تو وہ خود آپ سیٹ کریں گے. اور بچے آپ کی رہنمائی میں یہ سیکھیں گے کہ ایک لیڈر کیا ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر کام جانتا ہو, ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہو اور دوسروں کے لیے مثال پیش کرے. تو اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ریحان کالج جوائن کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے میں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ میں بھی ریحان کالج جوائن کروں اور جدید اسکلز اور یہ جو فزیکل ورک ہے, فزیکل اسکلز ہیں, یہ بھی سیکھوں تاکہ ان فیوچر انشاءاللہ میں بھی خود کو لیڈر دیکھنا چاہتا ہوں. زبردست, سن کے کافی اچھا لگا. کیا ریحان اسکول کا یہ ویژن ہے؟ میں نے تو اس بارے میں نہیں سنا تھا کہ یہ ہمیں فزیکل ورکس بھی سکھائیں گے, یعنی کہ کارپینٹر, پلمبر اور الیکٹریشین وغیرہ کا کام. یہ بھی تو میں نے نہیں سنا تھا. میں نے سنا تھا کہ یہ اے آئی کے متعلق ہر چیز آپ کو سکھائیں گے. مجھے اس بارے میں آپ نے یہ نیو انفارمیشن دی ہے, مجھے اس سے پہلے اس بارے میں معلوم نہیں تھا. ہیلو عمر بھائی. ہیلو, آپ مجھے سن پا رہے ہیں کیا؟ جی بالکل بھائی, آپ نے صحیح سنا تھا. جی آپ نے بالکل صحیح سنا تھا, کیونکہ یہ جو فزیکل ساتھ کام ہے, فزیکل اسکلز ہیں,
ये ओनली कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हैं, बाकी जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। वो जस्ट अपने टास्क ही करते हैं और एआई सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं। जबकि जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि 4 सालों के लिए इधर मुकीम है प्रॉपर, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं कि उन्हें साथ फिजिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। ओके, अच्छा। और रेहान स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है? अब रेहान स्कूल का मुझे नहीं पता क्योंकि उसके आप स्टूडेंट हैं, मैं तो रेहान कॉलेज नहीं का नहीं, स्टूडेंट हूँ। तो अगर वही। रेहान कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने क्या सीखा है? आपको क्या फायदा हुआ है ये रेहान स्कूल में? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब तक आप रेहान कॉलेज आपने ज्वाइन किया है? कब से ज्वाइन किया, कितना ड्यूरेशन गुजर चुका है? इस बारे में बताएं। मुझे यहाँ तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और रेहान कॉलेज आके मुझे पता चला कि जहाँ तक अभी हम जो रवायती एजुकेशन हासिल कर रहे थे उसके अंदर हम स्कूल कॉलेजेस के पढ़े लिखे या जो भी आप समझ ले वहाँ से तालीम याफ्ता लोग हैं। और वहाँ हमने रवायती स्कूल्स के अंदर देखा कि हर बच्चे के पास उसके बैग के अंदर कॉपी पेंसिल और बुक्स होती हैं। जबकि रेहान स्कूल और रेहान कॉलेज में मैंने ये चीज़ आके देखी कि हर बच्चे के हाथ में डिवाइस है, लैपटॉप है, मोबाइल है। और कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जो कि रवायती कॉलेजेस स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों को गेम्स खेलने की या ये जो डिवाइसेस हैं डिजिटल जैसे मोबाइल लैपटॉप लाने की भी इजाज़त नहीं होती, यूज़ भी बंदा नहीं कर सकता। तो रेहान कॉलेज में बच्चों को बाकायदा गेम्स खिलाई जाती हैं कि वो गेम खेलें और उनको एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम में वो फ्रेश हों और गेम्स खेलें, बाकी आप करें अपना काम करें और सीखें, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें। तो ये चीज़ जो थी। और दूसरा अपने हाथों से सारे काम करना, वसू जी जैसे करना। आपने सुबह उठ के वॉशरूम भी धोने हैं, सेन भी साफ करना है, किचन भी साफ करना है, खाना भी खुद पकाना है। उसके बाद आपने जो अदारे जिस अदारे के अंदर आप रह रहे हैं उसकी मैनेजमेंट को भी देखना होता है। अगर पानी वाला नहीं आया है, अगर गैस का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो गया है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, अगर आपका आया ये कि एनी वन गैस का कोई मसला है तो वो आप रिपोर्ट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह की मैनेजमेंट रेहान कॉलेज के अंदर सिखाई जा रही है जो कि मैंने सीखी। और इसके साथ साथ डिजिटल स्किल्स सीखी हैं जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सही मानों में किस तरह किया जाता है और आप इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव वे के अंदर यूज़ करके। जैसे कि बाज़ लोग जेमिनी फ्री हुआ है तो उसका मतलब ये आते रहे उससे, बल्कि उसका मतलब ये है कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए फ्री कर दिया है ताकि स्टूडेंट इससे पॉजिटिव वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जदीद स्किल्स के बारे में सीखें, समझें और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और उससे बेनिफिट हासिल करें। तो हमारी कौम हर चीज़ का उल्टा यूज़ करती है, ये हमारी एक क्या कह सकते हैं बदबख्ती है, बदकिस्मती है या गैर एक शऊर की कमी कहा जा सकता है। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें और हमारी हमारी कौम को समझ अता फरमाए। आमीन आमीन, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी कौम जो है हर चीज का उल्टा ही इस्तेमाल करती है। मसलन मैंने भी काफी, जब एआई ये सोरो वगैरह के टूल्स जब वायरल हुए हैं तो मैंने फेसबुक पे काफी कंटेंट देखा है जो कि बिल्कुल खराब है, बकवास कंटेंट है बिल्कुल। उसको देखने से इंसान का वक्त जी जाया हो रहा है। बिल्कुल। माना कि उनके अकाउंट्स पे रीच आ रही है लेकिन कोई क्रिएटिव वे नहीं है, सिर्फ फजूल काम है, किसी को जी कोई बिल्कुल फायदा नहीं। इसी तरह
किसी का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है टिक उससे। टॉक बनाए जा रहे हैं, उनके जी साथ ही आप शुगर लगाया जा रहा है। चैट जीपीटी के साथ के रातों रात में बिलियनियर कैसे बन सकता हूँ, मिलियनियर कैसे बन सकता हूँ विदाउट जी। किसी मेहनत के। इस तरह के हम्म, टिकटॉक पे मजाक चल रहे होते हैं, और हमारी सही है। बाशऊर कौम देख रही होती है, जिनके अंदर शऊर की कमी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है माशाल्लाह काफी सीनियर पर्सन है आप मेरे से, तो आपने काफी मेडिकल के हवाले से काफी काम किया है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी जो मेरा बेसिकली तल्लक है वो पंजाब का एक इलाका है, ज़िला खुशाब वहाँ से है, और उसकी तहसील नूरपुर जी थल से है। और मेरे गांव का अच्छा नाम आतिश तरगल है, जो कि एक छोटा सा अच्छा गांव है। और हमारे गांव की एक खसूसियत है कि वहाँ मेडिकल में ना लोग बहुत आगे हैं। और अच्छा मेडिकल में पूरे इलाके में नाम है, क्योंकि हमारे इलाके के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं ज़िलाई लेवल तक, सरगोदा यानी कि लाहौर तक वो नाइस नाइस। फैले हुए हैं माशाल्लाह। और मेडिकल का एक शहर कहा जाता है मेरे शहर को, जिसके अंदर अच्छा फार्मेसीज बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं। आपको जो यंग जो है पर्सन। जनरेशन, वो मेडिकल के अंदर मिलेगी। और दूसरी जो है उधर खुशाब की हमारी एक स्वीट्स मशहूर है, ढोडा पतीसा। जो अच्छा कि ढोडा और पतीसा ये दो चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं पूरी दुनिया, बल्कि मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो कि ठीक है। बहुत ही लजीज होती हैं, जायकेदार होती हैं। और जो कि मैंने अपनी मैट्रिक के बाद जो अपने एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो उसके अंदर हमें उस वक़्त कहा गया कि ये जो दौर है ये डिप्लोमे का दौर है, आप डिप्लोमा करें तो कामयाब होंगे। तो इसलिए हमने भी बड़ों की बात को सुनते हुए इसी पे अमल किया, और मैंने डिस्पेंसर का डिप्लोमा करने का फ़ैसला किया। सही है। डिस्पेंसर की जब मैंने एडमिशन लिया, तो साथ ही मैंने एक हॉस्पिटल जो हमारा तहसील लेवल का हॉस्पिटल था, तहसील लेवल की आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ रही। जी, तहसील लेवल का एक हॉस्पिटल था, कैसर जनरल हॉस्पिटल, जहाँ मैंने अपनी जो मेडिकल का आगाज़ किया। और पहले 6 मंथ मुझे जो थी वो एक जो वेन के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है या ड्रिप लगाई जाती है, वो भी मुझे लगाना नहीं आता था। तो 6 मंथ के बाद मैंने नाइट ड्यूटी शुरू कर दी, नाइट ड्यूटी, और मैंने उधर 4.5 साल काम किया है। और ओह, 4.5 साल में मैंने तकरीबन नाइट ड्यूटी फिर की है, यानी कि 6 मंथ इसमें से सही माइनस करें तो बाकी की मैंने नाइट ड्यूटी की है। तो उधर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हाथ सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता था, तो बहुत सी चीज़ें कवर हुई, सीखी। और उसके 4.5 साल बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और अपने ज़िले लेवल के एक हॉस्पिटल में आ गया। वहाँ आके सही मैंने है। रुबीना शाहीन हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, जिसके अंदर एज ए डिस्पेंसर मैंने काम किया। और सही है। वहाँ जो हार्ट अटैक वाले मरीज होते हैं वो आते थे, जिनको हार्ट अटैक हुआ वो होता है, एंजाइना होता है, और सही है। वो तकलीफ की हालत में होते हैं, तो उनके स्टेंट करके जो वेसल खोली जाती है, उसका नाम था कैथ लैब। कैथ लैब के अंदर एज ए डिस्पेंसर मैंने परफॉर्म किया तकरीबन 2.5 साल। तो ओके। इस 2.5 साल के अरसे में जो सीसीयू एक वार्ड होती है, करोनरी केयर यूनिट, उसका इंचार्ज अच्छा रहा हूँ मैं। और वैसे भी ओवरऑल जो डिपार्टमेंट था कार्डियोलॉजी, उसकी जी मैनेजमेंट जी। भी मैं देखा करता था। इसके अलावा ऑल राउंड काम करता रहा हूँ, ओहो इमरजेंसी आईसीयू वगैरह में भी, वार्ड में भी काम किया है। तो रिसेंटली अभी मैंने वहाँ से स्किप किया जॉब को, और रिज़ाइन करके इधर मैं रेहान कॉलेज आ गया। अच्छा और अभी मैं मौजूद जबरदस्त। हूँ राइट नाउ जी मैं मौजूद हूँ जीनियस एकेडमी कराची में, तारिक रोड। जो कि जीनियस एकेडमी।
वो कहाँ पर है, लांडी में है या ये ताहिर रोड पे? नो, ये बहादुराबाद में वाक़ है, कराची बहादुराबाद में। ओके, चार मीनार के पास। जी चार चार मीनार एक भी जगह है ना, जी जी वहाँ पर है। जी, चार चार मीनार चुंगी है, उसी इलाके में आलमगीर मार्केट के साथ एक मीनार मस्जिद मशहूर है, अच्छा, वो आलमगीर मस्जिद है उसी एरिया में है। ठीक है, जबरदस्त। और मैं यहाँ औरंगे टाउन कैंपस से, औरंगे टाउन के हाँ, ओके। इस कैंपस के थ्रू मैंने एडमिशन लिया है रिहान कॉलेज में, यानी कि टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप। जी सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं था, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है, औरंगे टाउन कैंपस से है। औरंगे टाउन कैंपस के थ्रू मैंने टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप में एडमिशन लिया है। यहाँ से मुझे फैसिलिटेट किया गया है। अच्छा, आपको आप मेरी अपना आवाज? बता रहे हैं, जी जी आप अपना बता रहे हैं, जी जी, ओके, जी जी। यानी कि औरंगी कैंपस में आप फैसिलिटेटर हैं। नहीं, फैसिलिटेटर नहीं हूँ वहाँ पर, स्टूडेंट। ओके ओके ओके, सही यहाँ है, यहाँ के माशाल्लाह। थ्रू यहाँ के थ्रू मुझे यहाँ पर एडमिशन करने का मौका मिला। अभी आप प्रैक्टिकली फिजिकल क्लास ले रहे हैं या जी जी, ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल ले रहा लेते हूँ। हैं? फिजिकल ले रहा हूँ, फिजिकल क्लास हमारी ऑनलाइन होती है। लेकिन आज हमारी क्लास स्किप हो गई थी क्योंकि हमारे जो क्लास फेलोज हैं उनके टास्क कंप्लीट नहीं है, तो मिस ने आज क्लास ऑफ की है और कहा है कि आप लोग टास्क कंप्लीट करें, आज क्लास नहीं होगी। और कौन सी जो मिस है ना, क्लास मैं लेती है? मिस हफ्सा रिपोर्ट जॉब वाली। ओके ओके, सही है। जी, तो क्लास तो हमारी ऑनलाइन है। असल में मेरा एरिया जो है काफी पीछे से आता हूँ ना, मैं कराची का कोने में रहता हूँ, मैं एंड में कौन से गडाफ की इलाके में? साइड, गडाफ की साइड में रहता हूँ, गडाफ की साइड। वहाँ पे ना बिजली अच्छा अच्छा। प्रॉपर है, ना इंटरनेट प्रॉपर है, ना मोबाइल सिग्नल्स प्रॉपर है, तो मुझे तो ऑनलाइन क्लास लेने में काफी मसला होता था। तो फिर मैंने यहाँ से बात की कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्या क्लास लेने के लिए। बोला जी बिल्कुल आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं, यहाँ पे हम आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, मैंने बोला सही है। और फिर मैं आपको टीचर ट्रेनिंग के कितने टास्क हो गए आपके? मैं वीक 4 पर हूँ अभी। डे 4 पे? नहीं, वीक 4 डे 2। बुक्स फॉलो कर रहे हैं जी बिल्कुल, बुक्स फॉलो कर रहा हूँ। और पोर्टल पे अपलोड भी कर रहे होंगे? पोर्टल फिलहाल मेरा लॉक है, इंशाल्लाह मैं उसको अनलॉक करने की कोई कोशिश करूंगा। जी, ओके, ठीक है। ठीक है, सवाल जज़ाकल्लाह सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू तवील होता जा रहा है। और मजीद एक वो बात, आखिरी बात, कि आप मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझे देखेंगे या अभी देख रहे हैं फेसबुक पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके व्यूवर्स और ख़ासकर अपने इस वतन अज़ीज़ के नौजवानों, बच्चों और ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग स्क्रॉलिंग करते हुए सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं, एक किस्म का ज़िया ही है टाइम का, टाइम इज़ मनी। तो इसलिए आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें सॉफ्ट स्किल्स सीखने में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें, समझें, और इससे सही है। अपनी ज़िंदगी आसान करें और अपने किचन रन करें, और इस तरह आप अपने अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाएं, अपने मुआशरे की मुआशी हालत को बेहतर बनाएं, और दूसरों के लिए आसानियाँ क्रिएट करें। और बिल्कुल ये है कि अपने मुल्क पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे ले जाएं, जदीद स्किल्स को सीख कर, और जो कुछ आप सीखें समझें वो दूसरों में बांट दें, तकसीम कर दें। इससे आपका इल्म और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि रिस्क बांटने से, तकसीम करने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी तरह इल्म भी है। इल्म एक समंदर है, तो इसको जितना ज़्यादा आप फैलाओगे ये फैलता जाएगा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आपके व्यूवर से। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सो माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, सर उमर फारूक ने, हमारे भाई, हमारे दोस्त ने आपको जो है सजेशन दी है, इसके ऊपर आप फायदा अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। ठीक, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।